بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، محکمہ اسکول تعلیم نے 400 سے زائد اساتذہ کے تقرر و تبادلے غیر قانونی قرار دے کر تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے دیا، جس کا محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آزاد نہوڑیوں سے۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسکول تعلیم کے نئے سیکرٹری زاہد علی عباسی نے عہدے پر براجمان ہونے کے بعد میں نگران دور میں سابق سیکرٹری اسکول تعلیم ڈاکٹر شین مصطفیٰ نارنگیوں اور ایڈیشنل سیکرٹری ریاض صحتوں کی جانب سے 400 سے زائد پرائمری اور مڈل اسکول ٹیچرز کی جو ڈیٹیلمنٹ کی بنیاد پر تبادلے کیے گئے تھے، ان تمام کو ریکروٹمنٹ پالیسی 2021 کی خلاف ورزی قرار دے کر تمام جو تقرر تبادلے ان کی نوٹیفیکیشنز کو ایک ہی نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان تمام تر کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور تمام اساتذہ کو بایو میٹرک والے اسکول میں رپورٹ کرنے کی جو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ تقرر تبادلے سابقہ دور میں کیے گئے تھے، لیکن موجودہ سرکار نے ان کو جو پالیسی جو بھرتی پالیسی اس کو خلاف ورزی قرار دیا، جس کے بعد تمام تر نوٹیفیکیشن کو جو ہے کالعدم قرار دے کر اساتذہ کو اپنی پرانے والی جو پوسٹیں تھی وہاں پر براجمان تعینات ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ صوبائی حکومت کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ انٹرمیڈیٹ حصہ اول کے سالانہ امتحانات کے تمام گروپس کی شیٹس تیار کر لی گئی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں سید زبیر راشد سے۔ زبیر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی جانب سے قائم کردہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جو کی سفارشات پر عمل درآمد کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ حصہ اول کے سالانہ امتحانات برائے 2023 کے تمام گروپ کی ماڈریٹ مارک شیٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ حصہ اول کے تمام گروپ کی ماڈریٹ مارک شیٹ جو ہے بشمول کامرس گروپ کی وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ طلبہ کی ماڈریٹ مارک شیٹ میں گریڈ مارکس دے دیے گئے ہیں۔ مارک شیٹ 25 مارچ 2024 تک کالجوں کو بھیج دی جائیں گی۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے حصہ اول کی پرانی مارک شیٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی ہیں۔ طلبہ سے پچھلی مارک شیٹ وصول کر کے نئی ماڈریٹ مارک شیٹ جاری کی جائے۔ یہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے تمام کالجز کی جو ہدایت ہے وہ جاری کی ہے۔ جی ٹھیک ہے زبیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ سرکار کا عوام کی حفاظت کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ حکومت اور NRTC میں سیف سٹی منصوبے کو شروع کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 5.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں صوبے میں کسان کارڈ شروع کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ سندھ سرکار کے بڑے فیصلے، کسانوں کی حالت بہتر کرنے کے اقدامات، ٹرانسپورٹ کی بہتری کا انتظام اور شہریوں کی سیکیورٹی بہتر کرنے کا بھی دیا پیغام۔ اس حوالے سے عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ سرکار کے بڑے فیصلے، کسانوں کی حالت بہتر کرنے کے اقدام، ٹرانسپورٹ کی بہتری کا انتظام، شہریوں کی سیکیورٹی بہتر کرنے کا بھی دیا پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، شہر قائد کو محفوظ بنانے کے منصوبے سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی منصوبے کے لیے 5.5 ارب روپے کی منظوری دی۔ اجلاس کے بعد منعقدہ تقریب میں سندھ حکومت اور NRTC کے درمیان سیف سٹی پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے تحت NRTC پہلے مرحلے میں ریڈ زون کے 300 مقامات پر 1300 CCTV کیمرے نصب کرے گا۔ سیف سٹی کا پہلا مرحلہ 1.5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی پیپلز بس سروس کے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ پیپلز بس کے لیے مزید 40 بسوں کی خریداری کی جائے گی۔ بسوں کی تعداد 270 ہو جائے گی۔ کابینہ نے پیپلز بس کے اخراجات کے لیے 52 کروڑ کی منظوری دی، جبکہ اس پر 96 کروڑ 80 لاکھ روپے کی سبسڈی کی بھی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ نے صوبے میں کسان کارڈ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 6 ماہ کے اندر کسان کارڈ کے اجرا کے لیے جلد پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اربوں روپے کا منصوبہ ناکام، اورنج لائن سے عوام کو مطلوبہ سفری سہولیات نہ مل سکیں۔ مختصر ترین روٹ اورنج لائن کی ناکامی کا سبب بنا۔ مسافروں کی کمی سے 10 بسیں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ ہمنا نثار کی رپورٹ۔
صرف 4.25 کلومیٹر پر اربوں روپے پھونک دیے گئے۔ اورنج لائن کی مختصر ترین روٹ کی وجہ سے عوام سفر کرنے سے گریزاں ہیں۔ اورنج لائن بورڈ آفس سے صرف اورنگی 5 نمبر تک تعمیر کیا گیا ہے۔ روٹ پر صرف 10 بسیں چل رہی ہیں، جبکہ مسافروں کی کمی کی وجہ سے 10 بسیں گراؤنڈ کر دی گئی۔ منصوبے کی ناکامی کی بڑی وجہ گرین لائن سے نہ جڑنا ہے۔ اورنج لائن پر بس سروس 10 ستمبر 2022 کو شروع کر دی گئی تھی۔ 1.5 سال میں بھی دونوں لائنز کو جوڑا نہ جا سکا۔ اورنج لائن کو اورنگی سے ناگن تک گرین لائن کے روٹ پر چلانے کا منصوبہ ہے۔ بڑھائیں گے تو الحمد للہ کیوں نہیں جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ ان کو بولے کہ آگے بڑھے، ہم گاڑی کی طرح سفر کریں اور سہولت دیں گے تو اچھی بات ہے نا، ملک ترقی کرے گا۔ سہولت پہ تو تولک کی چلتی ہے نا۔ تھوڑی سی دیر کا سفر ہے، یہاں سے چڑھو وہاں اتر جاؤ، اگر آگے جانا ہے تو اس کے لیے وہ نہیں ہے، کیا کریں اس پہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ جاتے ہی نہیں ہے لوگ، کیا کریں اس کے لیے، آگے تک کرواؤ اس کو، پھر تو شاید چلے بھی، کیونکہ یہ اسٹاپ اس کا نہیں ہے۔ اسٹاپ آگے ماشاءاللہ سے آگے تک اس کا بنے گا تو پھر تو یہ چلے گی، ویسا نہیں چلے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روٹ کو وسیع نہ کیا گیا تو اورنج لائن ہمارے کسی کام کا نہیں۔ یہ چھوٹا سا روڈ ہے، 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا روڈ ہے، یہ اگر گرین لائن سے جوڑ دینا کا، یہ تو سندھ اور وفاق اور سندھ حکومت دونوں مل کے آدھی گاڑی جائیں یہ صدر کی طرف، آدھی گاڑی جائیں سریانی کی طرف، تو یہ کامیاب ہے۔ ایک گاڑی خالی نہیں جائے گی، 80 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس میں سے صرف 20 گاڑیاں چلتی ہیں، وہ بھی بالکل خالی۔ یہ تو کروڑوں روپے برباد کر دیا گورنمنٹ نے، یہ یہیں پر ہی پل گھما دیا، بورڈ آفس پہ اتار دیا، عوام کو کوئی سہولت تھوڑی ہے، اس سے تو گورنمنٹ کا پیسہ برباد ہوا ہے، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے عوام کو۔ اوپر اب بہت سی ماں بہنیں چڑھ نہیں سکتی، وہ اوپر چڑھ کے جائیں گی، بورڈ آفس پہ اتریں گی، 40 روپے کرایہ دیں گی، اور اتنا سا سفر ہے۔ ٹرانسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ اورنج لائن کی ناکامی کی بڑی وجہ متبادل ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ماس ٹرانسپورٹ کے روٹ پر چنچی نہیں چلے گی۔ اورنج اور گرین لائن کے روٹس پر سینکڑوں رکشے چلتے ہیں۔ متبادل ٹرانسپورٹ کے باوجود اورنج لائن پر یومیہ 60,000 افراد سفر کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن کو گرین لائن سے جوڑنے کے منصوبے کا ٹینڈر ہو گیا ہے۔ منصوبے پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ کراچی میں تجاوزات کی بھرمار نے متعلقہ اداروں کو بھی پریشان کر دیا۔ شہر بھر میں چھوٹی بڑی مارکیٹ کے باہر ٹھیلے اور پتھارے قائم ہیں جو ٹریفک روانی میں خلل کا باعث بن رہے ہیں۔ جنید جاوید کی رپورٹ۔ رمضان المبارک میں تجاوزات کی بھرمار، شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹ کے باہر ٹھیلے اور پتھاروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ صدر، بوہری بازار، کلفٹن، رنٹھو لائن سمیت دیگر مارکیٹوں کے باہر قائم تجاوزات ٹریفک روانی میں خلل کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ سینئر ڈائریکٹر KMC اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن پتھارے والے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ پولیس اور عوام کو چاہیے کہ وہ نگرانی کرے، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ نہ آنے دیا جائے تو یہ تجاوزات کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہماری ٹیم جب آپریشن کر کے دوسری جگہ جاتی ہے، سپوز کریں 4 بجے آپریشن ختم کیا، 6 بجے وہ دوسرے ایریا میں جب ٹیم ہماری کام کر رہی ہوگی تو پیچھے وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اچھا، پولیس سے بھی ہماری درخواست ہے، اس کے ساتھ ضلعی انتظامیہ سے، کہ اگر کوئی ریپیٹڈلی اگر ایک ہی جرم بار بار کر رہا ہو، بار بار تجاوزات کو لگا رہا ہو، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، جو میجسٹریل پاور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تجاوزات کا بے قابو جن اداروں کے بھی قابو میں نہیں رہا، البتہ شہر کے 25 ٹاؤنز اور KMC مسلسل کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ شہر بھر میں چارج پارکنگ مافیا کی منمانی برقرار ہے۔ چارج پارکنگ کے کانٹریکٹرز نے KMC کو چیلنج کر دیا۔ بائک کی فیس 10 کی بجائے 50 اور کار کی فیس 30 کے بجائے 100 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ جنید جاوید کی رپورٹ۔ شہر بھر میں پارکنگ مافیا بے قابو، من مانگی فیسوں کی وصولی کا سلسلہ جاری۔ KMC کی 46 سائٹس پر پارکنگ ہے، جہاں سے بائک فیس 10 کے بجائے 50 روپے وصول کی جانے لگی۔ کار پارکنگ فیس 30 روپے کے بجائے 100 روپے وصول کی جانے لگی۔ ضلع شرقی میں KMC کی 17 پارکنگ سائٹس موجود ہیں، وسطی میں 9، ضلع جنوبی میں 10، کورنگی اور ملیر میں 7 اور عربی اور کماڑی میں 3 پارکنگ سائٹس موجود ہیں۔ سینئر ڈائریکٹر چارج پارکنگ قیوم خان کہتے ہیں کہ پارکنگ فیس زائد وصولی پر کارروائی کریں گے۔ میئر کراچی جناب مرتضی وہاب صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ کراچی کو بھتہ مافیا ختم کی جائے ان کی، تو اس کے لیے ہم نے عملی جامہ کیا ہے، اپنی تمام پروگرامز اس پہ رکھے ہیں، رمضان شریف میں چل رہے ہیں ہم، تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں کور کر لیں گے۔ شکایتیں آتی ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے ہر سائٹ پہ کمپلین نمبر رکھا ہوا ہے، سرکاری نمبر، ان قریب ہم واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے آپ کو۔
कयूम खान ने दावा किया कि KMC चार्ज पार्किंग का स्टाफ भी मुख्तलिफ मार्केटों के बाहर तैनात है। आवाम को शिकायत हो तो स्टाफ से रिजू करें। जल्द बल्दिया उज़्मा कराची अपना शिकायती व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगी। जुनैद जावेद, सिटी 21। और यकीन ट्रस्ट ने रखी अपनी अफ्तार रिवायत बरकरार। चौथे साल भी महमूदाबाद पर अफ्तार का एहतमाम, जहाँ पूरे महीने मुतवस्सत तबके, मुसाफिरों और राहगीरों को अफ्तार कराई जाती है। कराची में मुसाफिरों और जरूरतमंदों के लिए इफ्तार, शहर में कायम होने लगी भाईचारे की फिजा। रमजान मुबारक में शहर कराची के लोग नेकियां समेटने में सबसे आगे। जहां अहले ईमान मुख्तलिफ इबादात में मसरूफ होते हैं, तो वहीं शहर के बासी मुख्तलिफ शाहराहों पर रोज़ा इफ्तार करवाने में पेश रहते हैं। यकीन ट्रस्ट की जानिब से भी महमूदाबाद रोड पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम, ये रिवायत गुज़श्ता 4 साल से जारी है। मुंतज़मीन का कहना है रोजाना 300 अफराद को इफ्तारी करवाई जाती है। ये हमारी NGO हमने 2020 में स्टार्ट की थी और कोविड के टाइम्स में, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिलसिला चलता रहा है। और हमारी पूरे साल का काम होता है। बकरा ईद पे भी हमारी मुहिम होती है, सर्दियों में, गर्मियों में, रमज़ानों में। ये कि ख़ास तौर से लोग ताउन करते हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उस पर करते हैं, स्केल पे करते हैं। तो 4 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है हर साल। रोज़ तकरीबन पहले तो शुरू के रमज़ानों में थोड़े कम लोग थे, बट जैसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं रमज़ान के, तो लोग हमारे पास मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो बेसिकली अब हमारे पास तकरीबन 300 से 350 लोग हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा एम है कि यार 500 650 इस आगे तक लेके जाएं। मुंतज़मीन कहते हैं मुल्क में माशी सूरत हाल बहुत खराब है। ऐसे में गुरबा जो सड़कों पे इफ्तार करते हैं, इनके लिए एहतमाम करते हैं। मुस्तकबिल में इस सिलसिले को मजीद वसी करने का भी इरादा है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ हमना निसार, सिटी 21। माह रमज़ान में शहर कायद के रहायशी गैस की फराहमी से महरूम। औरंगी टाउन इलाही कॉलोनी के मकीन भी गैस ना मिलने से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि सहरो अफ्तार में भी लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कराची में गैस बंदिश और लोड शेडिंग की शिकायत बढ़ने लगी। रमजानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। औरंगी टाउन के रिहायशी गैस ना मिलने से परेशान दिखाई दिए। इलाही कॉलोनी के मकीन कहते हैं सहरी और इफ्तार के औकात में गैस गायब रहती है। लकड़ी और सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये गैस का 2-2.5 साल से जो है ना हम लोगों का ये मुसीबत है, ये इसी मुसीबत में हम लोग फंसा हुआ है। चूल्हा जला देता है, रोटी बना देता है, अचानक बंद कर देता है। उस दिन इंजीनियर साहब आया था, 10-12 आदमी भी साथ थे। उनको हमने ऐसे घर बताया कि भाई इसी घर में कभी थोड़ा थोड़ा गैस आते, लेकिन उसमें आता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो ख्याल करिए रमज़ान के महीने में, आगे तो होता ही रहता है ऐसा ही। रमज़ान के महीने में तो कुछ ना कुछ ख्याल कर ले, यही हम चाहते हैं बस। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से गैस की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान AK के साथ मीर कैरियो, सिटी 21। कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके भीमपुरा में 10.5 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। भीमपुरा के मकीन बिजली न होने के सबब परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि बिल अदा करने के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। बिजली गायब होने से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। 10.5 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इस मुबारक महीने के इनको भी ख्याल नहीं है कि इस मुबारक महीने में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। तकनीकी खराबी या केबल फॉल्ट को बिजली की लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन विंग में सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन मलीर ज़हीरुद्दीन बाबर भट्टी की 1 माह छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जुबैर नज़ीर गोपांग को सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन मलीर और आसिफ अली सरकी को सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन गडाब टाउन 1 तैनात कर दिया गया है। सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नवाब शाह अमजद अली भुट्टो का तबादला करके सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नवाब शाह का आर्जी चार्ज मोहम्मद हसन जरदारी के सुपुर्द कर दिया गया है। सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन समारो मिंठार अली जरदारी का तबादला करके सब रजिस्ट्रार शाह फैसल कराची तैनात कर दिया गया है। सब रजिस्ट्रार 1 हैदराबाद सैयद यासिर अली शाह का तबादला करके
सब रजिस्ट्रार 2 गडाब तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब ने सुपरमार्केट में गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की। मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। एक दुकानदार गिरफ्तार भी हुआ। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद नरखों की वसूली और प्राइस लिस्ट न रखने वालों पर मजमूई तौर पर 42,000 रुपए का जुर्माना किया, जबकि मजामत करने पर एक दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी तक एक गिरफ्तारी अमल में आई है, क्योंकि एक तो उनके पास रेट लिस्ट भी नहीं थी, दूसरा वो बदतमीजी भी मजिस्ट्रेट साहब से बहुत कर रहे थे, और एक आलम था कि भाई हम तो बस इतने पे ही बेचेंगे, जो करना है कर लें। तो एक साहब ने गिरफ्तारी की है। उसके अलावा जो है वो हमने इनको 3 अदद जो है वो किरियाना वालों को हमने चालान किए हैं, 10,000 के 5,000, 10,000 के 5,000 का। तो इस तरह करके जो है वो लगभग 30,000 रुपये इसके ऊपर जो है वो टोटल हमने ग्रॉसरी पे फाइन। नदीम औरंगजेब बोले कि यौमिया बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हुकूमत रेट को चैलेंज करने वाले किसी ताजिर को नहीं बख्शा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्योंकि हमने कंसंट्रेटेड कैंपेन शुरू किया हुआ है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कमिश्नर कराची एंड चीफ मिनिस्टर सिंध, तो वो इसी वजह से अब आपको प्राइस लिस्ट नज़र आना शुरू हो गई। लेकिन अगेन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो प्राइस लिस्ट हमें देख के रख लेते हैं, लेकिन उनके रेट्स वो नहीं है। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं हमारी इन्फोर्समेंट से डे बाय डे, और आप देखेंगे चीज़ें प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी इंशाल्लाह। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में अशियाए खुर्दोनोश सरकारी नर्खनामे के मुताबिक फरोख्त भी कराई। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। माह रमज़ान में नेकी का जज्बा बढ़ जाता है और इसी जज्बे से सरशार होकर शहर भर में जहां रोड पर अफ्तार का दस्तरखान लगाया जाता है, वहीं कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों, कुली और राहगुज़र अफराद के लिए ख़ास एहतमाम भी किया जाता है। मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में हम देखते हैं कि शहर कायद में जगह जगह पर अफ्तार का अहतमाम किया जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। और इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट स्टेशन पर। कैंट स्टेशन पर भी गुज़श्ता 15 सालों से अफ्तार का अहतमाम किया जाता है मुग़य्यर हज़रात की जानिब से। जो यहाँ पर कुली हैं, इसके अलावा जो मुसाफिर हैं जिनकी ट्रेन में वक्त है, ये ट्रेनें लेट हैं, जो भी लोग आते हैं, हर ख़ास आम के लिए दस्तरखान सजाया जाता है। तो आइए इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माह मुबारक का आखिर पहला अशरे का आखिरी आज रोज़ा है, 10वां रोज़ा है, तो क्या कहेंगे आज जो सहरी अफ्तार का जो दस्तरखान है, सहरी में भी सजते हैं, अफ्तार में भी सजता है, अफ्तार के वक्त क्या रौनकें होती हैं, कौन कौन लोग आकर यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह शाह हमदान ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से ये यहाँ पर गुज़िश्ता 15 साल से एहतमाम किया जाता है, जिनमें से डेली की बुनियाद पर रोज़ाना 1200 से 1500 अफराद तक यहाँ अफ्तार भी करते हैं और साथ में खाना भी खाता। हाल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो कौन कौन है? ये सबके लिए होता है, ये मखसूस लोग? नहीं, ये सब हजरात के लिए, जिनमें कुल्ली हजरात शामिल हैं, मुसाफिर हजरात होते हैं, जिनकी ट्रेन जाने वाली होती है, वो लोग होते हैं। ये तमाम उन रोज़ादारों के लिए है जो लोग रोज़ा अफ्तार करना चाहें। ये दस्तरखान सब के लिए है, चाहे वो मुसाफिर हों, कुली हों, और या फिर वो यहाँ से राह गुज़र क्यों ना हो। और ये जो जज्बा हम देखते हैं कि शहर कायद में जगह जगह, हर जगह अफ्तार के वक्त अगर आप निकलें तो यही जज्बा ईमानी से सरशार होकर फरजंदान इस्लाम क्या कहते हैं कि नेकी के जज्बे को बढ़ाते हुए अफ्तार का एहतमाम करते हैं। जी, महकमे स्कूल तालीम में महकमे के अंदर दफ्तरी औकात के वक्त अफसरान और मुलाजमीन की वक्त पर हाज़िरी और ज़िम्मेदारी से ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देने का फ़ैसला कर लिया गया है। बात कर लेते हैं आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद बताइएगा, फ़राइज़ की अंजामदही किस तरह करवाई जाएगी? जी बिल्कुल, नए सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी ने ओहदे पर विराजमान होने के बाद में आज बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने हुक्म दिया है कि महकमा स्कूल तालीम का जो दफ्तरी औकात है, उस औकात कार के दौरान तमाम तर सरकारी जो मुलाजमीन है या अफसरान है वक्त पर पहुँचे और वक्त पर जो है दफ्तर से जाएँ। इस हवाले से खत में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई अफसर दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं होगा तो उसको पाबंद किया गया दफ्तर के अंदर वक्त पर मौजूद रहे, कोई अफसर दफ्तर से बाहर नहीं जाए। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि तमाम जो अफसरान हैं उनके पास जैसे फाइलें पहुँचे तो फौरी तौर पर उनको निपटाया जाए और फौरी तौर पर साइलेंट के मसाइल वक्त पर हल किए जाएँ। अगर किसी अफसर ने या मुलाजिम ने वक्त का कदर नहीं किया, वक्त पर नहीं पहुँचे, तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं टेस्टिंग किट ना रखने वाले दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मज़ीद बात कर लेते हैं काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें मायारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DG सिंध फूड अथॉरिटी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ आगा फ़खर हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगा साहब बताइएगा, आज ताजरों से भी मुलाकात हुई, वो कहते हैं 1 महीने का मोहलत दी जाए, तो क्या वो मोहलत देते हैं आप? और अगर उसके बाद भी खिलाफ वर्जी होती है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? प्रोडक्शन यूनिट हैं बेकरीज़ के, वो इतने अच्छे नहीं हैं या हमारे SOPs के मुताबिक काम नहीं कर रहे। इतनी कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं, जो कंस्ट्रक्शन में कमी है उसको वो 1 माह के अंदर पूरा करेंगे। जो बुनियादी चीज़ें कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए, जो बुनियादी चीज़ें फूड की हैंडलिंग में जो इनके पास आइटम्स की कमी है वो होनी चाहिए। मसलन अगर किसी के पास वॉशरूम बना हुआ है बीच उसमें प्रोडक्शन यूनिट में, तो वो ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उनके पास धोने का या वॉशिंग का एरिया नहीं है तो वो दोबारा बनाना चाहिए। अगर टाइल्स टूटी हुई हैं तो वो दोबारा बनानी है। तो इसके लिए इन्होंने 1 माह मांगा है कि हमें अब कंस्ट्रक्शन के लिए इतना टाइम दिया जाए। अब जो प्रोडक्शन है उसकी इंस्पेक्शन हमारी जारी रहेगी। प्रोडक्शन में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूध की तमाम दुकानों के लिए, दुकानदारों के लिए लाजमी करार दे रहे हैं कि हर दुकानदार जो बिज़नेस करेगा वो अपने पास किट पूरी एक रखेगा। जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और PSQ SIR जो है वो उन्होंने मिलकर जो बनाई है, तो वो किट जो है वो उनके पास लाजमी होनी चाहिए। और बहुत सारी किट्स और भी हैं, लेकिन जब हम दूध वाले से पूछते हैं कि आपका दूध कैसा है, तो वो ये कहता है कि सर मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। अब ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे नहीं मालूम, समझिए ना आप, कि अब अगर दूध वाला कहेगा उस दूध बेच रहा है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है। आगा फ़खर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि शहर में मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो टेस्टिंग किट्स है उसकी जो रिटेल की सतह पर या होलसेल की सतह पर उसको यकीनी बनाया जाए। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महंगाई या विंडो शॉपिंग पर एतमाद, माह सयाम में बाजारों की रौनकें ताहाल बहाल ना हो सकी, मार्केटों में सन्नाटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई, कुव्वत खरीद में कमी, माह सयाम में बाजारों की रौनकें ताहाल बहाल ना हो सकी, मार्केटों में सन्नाटे, दुकानदार खरीदारों के मुंतजिर। माह रमजान का पहला अशरा मुकम्मल होने के करीब आ गया, लेकिन बाजारों में खरीदार ना होने के बराबर। महंगाई से मीठी ईद की खुशियाँ भी फीकी पड़ गई हैं। बच्चों की ईद की खरीदारी भी मुकम्मल करना मुश्किल हो गया है। मतलब महंगाई की वजह से क्या शॉपिंग होगी गरीब की, आप बताओ ना। शॉपिंग तो जब होगी ना जबकि महंगाई कम होगी। महंगाई ये सोचना पड़ता है कि क्या लें और क्या ना लें। जाहिर सी बात है, बच्चों को तो हमारे को लेके देने हैं, लेकिन क्या करा जा सकता है कि बच्चों को भी कुछ न कुछ कह के उनको भी रोका जा रहा है, क्योंकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है, इतने ना वसाइल हैं। कमर तोड़ महंगाई से जहां खरीदारों ने ईद की खुशियां मुतासिर होने का शिकवा किया है, तो वहीं दुकानदार भी खरीदारों की राह तकने लगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। मारूफ बिजनेसमैन और पीपल्स पार्टी रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग की रिहाइशगाह पर सालाना अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल समेत अमायदीन शहर ने शिरकत की। राहील बेग की रिपोर्ट। सयाम की मुनासबत से PPMNA और मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग और मिर्जा इश्तियाक बेग की जानिब से सालाना अफ्तार पर पुरतकल्लुफ आशियाने का एहतमाम किया गया। दावत अफ्तार में सियासी, समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसलर जनरल ने भी शिरकत की। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना था कि अफ्तार मिल बैठने का बहाना है, तमाम दोस्तों से एक साथ मुलाकात भी हो जाती है। मेरी खुश नसीबी है कि माह सयाम में उम्रे की सादत हासिल करने जा रहा हूँ। यही मकसद है, इस्लाम यही कहता है कि रीयूनियन करें और आपस में हारमोनी पैदा करें। हम अपना कल्चर फॉरेनर्स जो डिप्लोमेट्स उनको बताएं कि किस तरह से हम रोज़ा खोलते हैं और उसमें कितना एक सुकून और सेटिस्फेक्शन है। तो ये इवेंट वो है जिसका पूरे साल इंतज़ार रहता है। और फिर परसों मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में मुझे ये सादत दी कि मैं उम्रा करूँ। बड़ी दुआएं मैंने मांगी थी, ये दुआएं पूरी भी हुई हैं। अफ्तार डिनर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो, शर्मिला फारूकी, निहाल हाशमी और तुर्किया, चीन और दीगर ममालिक के कौंसिल जनरल समेत सियासी, समाजी और फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहील बेग, सिटी 21। मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में रवां साल दर्जा हरारत में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे ने ख़तरे की घंटी बजा दी। कराची में मार्च में ही दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है। आलमी मौसमियात तंज़ीम ने खबरदार कर दिया है कि बहिर अरब में 2024 में दर्जा हरारत
मजीद बढ़ेगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, शदीद गर्म मौसम आने को है तैयार। कराची में सूरज ने मार्च के महीने में ही आंखें दिखाना शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रवां साल शदीद गर्मी की पेशनगोई कर दी। WMO ने खबरदार किया है कि बहरे अरब में 2024 में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। बहरे अरब में दर्जा हरारत में इजाफे का असर तमाम साहिली शहरों पर होगा। बहरे अरब में दर्जा हरारत में इजाफे को अल-न्यूनो का नाम दिया गया है। WMO का कहना है कि अल-न्यूनो के बाइस दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। WMO ने वाज़े किया कि अल-न्यूनो के बाइस रवां साल कम बारिशें और मौसम गर्म रहेगा। बढ़ने वाले दर्जा हरारत का असर एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होगा। रिपोर्ट पर बात करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी अल-न्यूनो का साल रहा है। अल-न्यूनो के 22 शहर कायद में मामूल से कम बारिशें हुई। कौन बनेगा नया IG सिंध? गुलाम नबी मेमन, अमीर शेख या जावेद आलम ओढ़ो? फैसला कल तक मुतवक्के। गुलाम नबी मेमन के नाम पर सिंध और विफाक में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाने के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात का एतराज़। तब्दीली की सूरत में IG सिंध रिफत मुख्तार की जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी जाएंगी। और हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतें कम ना की तो मज़ीद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन मुस्लिम मोहम्मदी ने खबरदार कर दिया। कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, सनतों को वेयर हाउस पर मुंतकिल किया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, ताजरों का तशवीश का इजहार, इंडस्ट्रीज बंद होने का इशारा दे दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री नाइब सदर मुस्लिम मोहम्मदी ने कहा कि जो बिजली के रेट्स हैं इनको कोई सेक्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा कि लागत बढ़ने पर अब इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस के बिलों की अदायगी मुश्किल हो रही है। मुस्लिम मोहम्मदी ने कहा कि बिजली और गैस के रेट बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। जो बिजली के निर्ख इस वक्त हो गए हैं और जो कारोबारी लागत इतनी ज़्यादा हो गई है, उससे वाकई इस वक्त बिजली के बिल देना मुश्किल हो रहा है। और उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि कई फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लेबर को ले ऑफ किया जा रहा है। और ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो लागत गैस की है वो भी तकरीबन दुगने से ज़्यादा हो चुकी है। काटी नाइब सदर ने कहा कि कोरंगी में अब इंडस्ट्रीज वेयर हाउस में तब्दील हो रही हैं। नई हुकूमत से अपील है कि बिजली और गैस के रेट पड़ोसी मुमालिक के बराबर किए जाएं। बात यह है कि लोग अपने फैक्ट्रीज़ को वेयर हाउसिंग के अंदर तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जितना इंपोर्ट का सामान होता है या उसकी जो तरसील होती है आगे मुल्क में, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वेयर हाउसिंग हो। इसको हमें यूज़र फ्रेंडली प्राइसेस के ऊपर गैस और बिजली मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो गैस मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए तो वो यूज़र फ्रेंडली प्राइसेस हों जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से, हमारे पड़ोसी ममालिक की प्राइसेस से मुताबिकत रखते हों, जभी तो हम कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे। काटी के नायब सदर ने साफ कहा कि अगर हुकूमत ने बिजली और गैस के रेट कम करने के लिए कुछ ना किया तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकेगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी के सफ़र का आगाज़। ICC ने अमेरिका में ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग कर दी। क्रिकेट शायकीन का इंतज़ार बढ़ने लगा। ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में की गई। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के खिलाड़ी अली खान मरकजी मेहमान थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी के सफर का आगाज। अमेरिका से सफर का आगाज, क्रिकेट शायकीन का इंतजार बढ़ने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टूर शुरू करा दिया। ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में की गई। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के खिलाड़ी अली खान ने शिरकत की। ICC ने इब्तदाई तौर पर पहले 1 महीने के ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी किया है। टूर के दौरान ट्रॉफी को अर्जेंटीना, ब्राजील और कनाडा भी ले जाया जाएगा। जार मिजाज बल्लेबाज क्रिस गेल ने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप का एजाज वेस्ट इंडीज की टीम जीतेगी। मेगा इवेंट के इब्तदाई मरहले में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। मार धाड़ की क्रिकेट का आगाज 2 जून से होगा।
जहां इफ्तिताई मैच में अमेरिका और कनाडा की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इंग्लैंड की टीम अपने एजाज का दिफा करेगी, जिसने 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को मेलबर्न के मैदान पर शिकस्त दी थी। जावेद इकबाल, सिटी 21। शहर कायद में मुस्तकबिल के स्क्वाश चैंपियंस की तैयारी जारी है। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है। हेड कोच नवीद आलम की ज़ेरे निगरानी स्क्वाश टेक्निक्स के साथ साथ फिटनेस पर भी तवज्जो दी जा रही है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने स्क्वाश खेल में 4 दहाई तक हुक्मरानी की। हाशिम खान, रोशन खान, जहांगीर खान और जानशेर ने स्क्वाश कोर्ट पर बेशुमार एजाज दिलाए। माजी के सुनहरे दौर की वापसी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पाकिस्तान नेवी के रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। हेड कोच नवीद आलम की ज़ेरे निगरानी सुबह शाम लड़के लड़कियां भरपूर मेहनत कर रहे हैं। स्क्वाश की टेक्निक्स के साथ फिजिकल फिटनेस पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। कोच नवीद आलम कहते हैं कि नौजवान बासलाहियत हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कोशिश है कि दोबारा स्क्वाश की दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करें। अभी आपको पता है जो पाकिस्तान नंबर 1 है वो कराची की है, और प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये वो इस कला में ट्रेनिंग भी करती है हमारे साथ। इसके साथ साथ हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है, अब डिपेंड करते हैं हम उसको पॉलिश किस तरह करते हैं प्रॉपर वे में। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक ट्रेनिंग सेशन प्रॉपर सेटअप से चल रहा है। एवरी वीक जहांगीर खान साहब भी यहाँ विजिट करते हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि जहांगीर खान और जानशेर जैसा खिलाड़ी बनना इनका ख्वाब है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। हम डेडिकेशन से जो है ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ सुबह आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद हमारा गेम्स का सेशन होता है। खेल बहुत मुश्किल है, अगर आप सही मेहनत करें तो आप एक लेवल पे खेल सकते हैं। आपको खुद दिल से चाहना होगा कि आप कोशिश करें, और फिर अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर सब इंशाल्लाह एक लेवल पे बहुत डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग होती है प्रॉपर वे में, और प्रॉपर प्रोफेशनल लाइक ट्रेनिंग होती है, और इंशाल्लाह बस हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान के लिए स्क्वाश का आखिरी वर्ल्ड ओपन टाइटल जानशेर खान ने 1996 में जीता। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का ट्रेनों के औकात कार में तब्दीली का मुतालबा। कहते हैं कि इफ्तार के बाद चलने वाली ट्रेन के लिए दूर दराज इलाकों से आने वालों को जल्दी निकलना पड़ता है। स्टेशन पर भी इफ्तार के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं है। मज़ीद बता रही हैं नम्रा रियासत। बिल्कुल, जो माह रमज़ान में शहर भर में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं, जहाँ राहगीर और मुस्तहिक अफराद समेत तमाम के जो है इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इस वक्त कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रेन का इंतज़ार करने वाले जो मुसाफिर हैं उनका रोज़ा जो है वो कैंट स्टेशन पर इफ्तार हुआ है। वैसे तो हमने देखा है कि स्टेशन पर मुख्तलिफ जो है वो समाजी और सियासी जमातों की जानिब से वो इफ्तार का अहतमाम किया भी गया है, कुछ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी। लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे भी हैं जिनका जो है ट्रेन का इंतज़ार करते हुए इफ्तारियाँ हुए। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं हमारे हमरा, हम इनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा कब से आप ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और इफ्तार भी आपका रहा है? इफ्तार से पहले हम लोग आए, और ट्रेन का टाइम ऐसा है कि ना तो हम घर में रह सकते हैं और ना यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त आया हूँ वो गुलबर्ग सराबकोट से, तो आते आते मेरा ख्याल पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। अगर मैं इफ्तारी करके घर से चलता तो मैं पहुँच नहीं सकता था, और अगर मैं पहले आया हूँ तो यहाँ कोई पानी का इंतज़ाम ही नहीं है स्टेशन पे कि कोई कम से कम। पूरे शहर में जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं इफ्तारी के, मगर जहाँ हक है लोगों का, जहाँ मुसाफिर हैं, यहाँ पानी होना चाहिए, कोई इफ्तारी का इंतज़ाम होना चाहिए मुखियर ज़राअत की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, मगर यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। अपना पानी, अपना ही सब कुछ। जी, यकीनी तौर पर ट्रेन का इंतज़ार करने वाले मुसाफिर हैं, उनका मुतालबा है कि औकात कार में तब्दीली ज़रूरी है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से कैंट स्टेशन की तरफ आने वाले जो मुसाफिर हैं वो अगर इफ्तार घर से करके निकलते हैं तो यकीनी तौर पर वो बर वक्त जो है वो स्टेशन पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर औकात कार में तब्दीली या कोई मौसर इक़दामात मुसाफिरों के लिए आप कैंट स्टेशन पर किए जाएँ ताकि उनको सहूलत मैसर आ सके। जी। और परिंदों का शहर कूच करना, शहर में दरख्तों की कमी का इशारा। महकमे जंगली हयात सिंध की कराची में दिलचस्पी चिड़िया शुमारी मुहिम। कराची में की गई 3 रोज़ा मुहिम की रिपोर्ट जारी। शहर के 5% इलाकों में सिर्फ 9035 चिड़ियाँ मिल सकें। नमरा रियासत की रिपोर्ट। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। शहर कायद में दरख्तों की कमी ने खतरे का अलार्म बजा दिया। शहर में चिड़ियों की कमी हो गई। चिड़ियों की गिनती हुई तो सिर्फ 9035 चिड़ियाँ मिली। कराची के 5% इलाके में चिड़िया शुमारी की रिपोर्ट जारी।
محکمہ جنگلی حیات سندھ کی جانب سے شہر میں 3 روزہ چڑیا شماری مہم چلائی گئی۔ 17 مارچ سے جاری اس دلچسپ مہم میں وائلڈ لائف فوٹوگرافر سمیت طلبہ اور انفرادی دلچسپی لینے والوں نے بھی حصہ لیا۔ کنزرویٹو وائلڈ لائف جاوید مہر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ 3780 رقبے پر محیط علاقوں میں مہم چلائی گئی۔ چڑیوں کی کم ہوتی تعداد کا سبب انسانی رویہ ہے۔ انسانی آبادیوں کے گرد، جن میں شہری باغات اور شہری رہائشی علاقے شامل ہیں، آبزرویشن کی ہاؤس اسپیرو کی، اور اس اپنا آبزرویشن ایک نہ صرف ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں جمع کیا بلکہ فارم فل کر کے واپس ای میل بھی کیا، اور حاصل کیے گئے ڈیٹا کے مطابق ٹوٹل کاؤنٹ جو ہوا ہے کراچی کے ٹوٹل رقبے کے 5% علاقے پر کیے گئے سروے کے مطابق ہاؤس اسپیرو کی تعداد کراچی میں 9035 یعنی 9035 ڈکلیئر کی گئی ہے۔ وائلڈ لائف فلم میکر ماہرہ عمر نے شہر میں پرندوں کی کمی پر بات کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پر زور دیا۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شہر کو ہرا اور بنائیں، اور یہاں کے جو مقامی درخت ہیں جو کہ بہت کم ہو گئے ہیں، اپنے پارکوں میں، اپنے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر ویسے پودے لگائیں، جیسے ببول ہو گیا یا پیلو ہو گیا۔ تو کیونکہ انہی درختوں اور جڑی بوٹیوں پودوں میں کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں جو کہ پرندوں کا خوراک بھی ہوتے ہیں۔ رواں سال کی گئی پہلی چڑیا شماری مہم میں 60% باغات اور 40% عمارتوں والے حصوں میں گنتی کی گئی، جس میں 82% مرد اور 18% خواتین نے حصہ لیا۔ کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ رمضان المبارک، نیکیوں کا موسم بہار، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ۔ اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والے افطار کے لمحات گزارنے کے لیے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں افطار کے ساتھ روح کو سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ مزار انتظامیہ کے مطابق یومیہ 2500 سے 3000 روزے دار بابا غازی کے مزار پر افطار کرتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ، ہر کوئی نیکیاں سمیٹنے میں مصروف، سڑک کنارے افطار کا اہتمام۔ سید عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ افطار اور روحانیت کے حصول کی جگہ۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے فرزندان اسلام مساجد، سڑک کنارے اور میدانوں میں اجتماعی افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے میں اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والے مزارات پر دعائے افطار کو ترجیح دیتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ شہنشاہ کراچی سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر افطار کے وقت حاضری اور دعا میں شامل ہو کر روحانیت کا احساس ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مزار کے منتظمین زاہد فخری کا کہنا ہے کہ سید عبداللہ شاہ غازی مزار کا کوئی گدی نشین نہیں ہے۔ محکمہ اوقاف اور عقیدت مندوں کی جانب سے رمضان المبارک میں خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ وقتاً فوقتاً دعوے بھی کیے گئے، کسی نے کہا جی میں گدی نشین ہوں، سوشل میڈیا میں اسے چڑھا دیا، یوٹیوب میں چڑھا دیا، فیس بک میں چڑھا دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں یا خدا کو خوف کرو، اپنی نسل کو دیکھو، اپنے خون کو دیکھو اور ان کو دیکھو کہ یہ سادات ہیں، آل رسول ہیں، اپنے گربان میں جھانکو کہ تم کون ہو۔ دعویٰ کرنے سے پہلے کم از کم اپنی حیثیت کا تعین کر لو۔ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی سرکار کا کسی دور میں بھی کوئی گدی نشین نہیں تھا۔ مینیجر اوقاف عبداللہ شاہ غازی مزار پنو خان کا کہنا ہے کہ 2500 سے 3000 افراد افطار کے وقت موجود ہوتے ہیں اور تبرک تناول کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہماری طرف سے فی سبیل اللہ 24 پورے رمضان میں فی سبیل اللہ روزہ کھلا جاتا ہے، تقریباً 2-2.5-3 ہزار آدمی آتے ہیں، ڈیلی روزہ کھلاتے چلے جاتے ہیں۔ منتظمین کے مطابق رمضان المبارک میں یوم ہزاروں افراد کی مزار شریف پر آمد کے تناظر میں غیر معمولی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین غلفام شیخ کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔